Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I am going to discuss the lesson number 8 of chapter 4, and the topic is effects of different solutions on animal cell and plant cell, and we will also discuss the related phenomena to this topic. So dear students, let's start the lesson. The effects of hypertonic, and isotonic solutions on animal and plant cells. Dear students, first of all we should learn about the definitions of these three kinds of solutions. Number one is hypertonic solution. Such a solution in which solute concentration is higher and solvent concentration is lesser, such a solution is known as hypertonic solution. यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो और वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है और उसकी कंसंट्रेशन कम हो, तो ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं. हाइपरटोनिक सोल्यूशन which have lower solute concentration and more solvent concentration, that is called hypertonic solution. यानी एक ऐसा solution जिसमें solute concentration कम हो और water concentration जो कि again यहाँ पे as a solvent use हो रहा है उसकी concentration ज़्यादा हो, तो उस ऐसे solution को हम hypertonic solution कहते हैं. And isotonic solution have both in equal amounts. Both means यहाँ पे हम solute और solvent का जिक्र करेंगे कि solute और solvent की quantity equal amount में हो, equal concentration में हो, so such solution is known as isotonic solution. Dear students, effect of hypotonic solution on animal and plant cell. So पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि hypotonic solution in which contain higher concentration of water and lower concentration of solutes is called as hypotonic solution. चूंकि water concentration ज़्यादा है cell से as compared to the cell, so there is a net movement of water from outside into the cell. water बाहर से अंदर जाएगा सेल के अंदर और इसके रिजल्ट में सेल गेन्स वाटर and will swell up and the internal pressure increases. और अगर एनिमल सेल है that will eventually burst. यहाँ पे जब वाटर सेल वाटर गेन कर लेता है तो ये यहाँ पे एक फिनोमेना का जिक्र हम ज़रूर करेंगे which is known as turgidity. इस स्वेलिंग कंडीशन को हम कहते हैं turgidity. अब वो जो अभी हमने जिक्र किया उसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे आपको समझाया गया है कि यहाँ पे वो देखिए, आप देख रहे हो कि वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है जबकि इनसाइड वाटर की कंसंट्रेशन बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि इनसाइड वाटर की कंसंट्रेशन कम है. सो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इनसाइड पेनिट्रेट हो रहे हैं, अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं. ये है इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑन सेल. अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एनिमल सेल है, चूँकि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होता, तो इवेंचुअली एनिमल सेल विल बस्ट. और चूँकि जो एनिमल प्लांट सेल है उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल इसको बर्स्ट होने से रोकती है. क्लियर? जो हम जिक्र कर रहे थे टर्जिडिटी की, when a plant cell is placed in a water and the water enters the cell, this because their cell sap contains a strong solution. Due to the swelling of the of a cell, which is due to the absorption of water, such condition of a cell is known as turgid, and the cell is known as turgid cell, and the phenomena is known as turgidity. Clear? Now we are going to discuss the effect of hypertonic solution in animal and a plant cell.
Hypertonic solution is that solution which contains higher concentration of solutes and less concentration of solvent. Here water is used as solvent. Since the concentration of water is higher within the cell, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सो देयर विल बी अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू outside to the solution. यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं वाटर लिव्स द सेल यहाँ by means of osmosis, and this process will cause the cell to shrink as internal pressure decreases. यही बात कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है जबकि इनसाइड वाटर की मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. सो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, और इसके रिजल्ट में ये सेल जो है यहाँ पे ये श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से ये अपनी जो इसकी पर्टिकुलर शेप होती है वो लॉस कर देगा. क्लियर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनिमल सेल पे क्या असरात हो सकते हैं और प्लांट सेल पे इसके क्या असरात हो सकते हैं. एनिमल सेल में इस प्रोसेस को हम क्रीनेशन कहते हैं और प्लांट सेल में हम इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. एनिमल एंड प्लांट सेल्स इन एन आइसोटोनिक सोल्यूशन. आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में मैंने स्टार्ट में कहा था कि डियर स्टूडेंट्स, इसमें दोनों की क्वांटिटी यानी सोल्यूट की क्वांटिटी और सॉल्वेंट की क्वांटिटी इक्वल होती है. सो वाटर डिफ्यूज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल एट इक्वल रेट्स. देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप. क्लियर. यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर आउटसाइड जो वाटर कंसंट्रेशन है और इनसाइड वाटर कंसंट्रेशन बोथ आर इन इक्वल अमाउंट. सो यहाँ पे मूवमेंट तो हो रही है लेकिन सेल जो है उसने अपनी पोजीशन यानी अपनी शेप मेंटेन रखी हुई है. क्लियर. प्लाज्मोलिसिस. यहाँ पे स्टार्ट में हमने जिक्र किया था कि इससे रिलेटेड फिनोमेना, तो प्लाज्मोलिसिस इज आल्सो वन ऑफ द रिलेटेड फिनोमेना टू दिस टॉपिक. प्लाज्मोलिसिस, shrinkage of a cell, that is called plasmolysis. When cell loses water, then eventually cell lost its original shape, और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. Plasmolized cells and little support to the structure of the plant. Indeed, this is the very reason why plants wilt up into salty water. Salty water में इसलिए क्योंकि वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है. इनसाइड प्लांट में कंसंट्रेशन वाटर की प्लांट सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. सो इवेंचुअली ऑब्वियसली वाटर विल लीव द सेल एंड विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, जिसके नतीजे में सेल विल लॉस्ट इट्स शेप, और इस स्टेट को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑन ए प्लांट सेल, ये इसलिए मैंने जिक्र किया है कि वाटर डिफ्यूज आउट ऑफ द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है? द प्रोसेस इन विच द डिफ्यूजन अकर्स through a semi-permeable membrane, that is called osmosis. Water loses from both vacuole and cytoplasm causes to shrink. ये प्लाज्मोलिसिस से रिलेटेड टॉपिक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये प्लाज्मोलिसिस की एक्सप्लेनेशन है. Plasma membrane pulls away from the cell wall because flaccid and less turgid. Cell wall doesn't shrink because as it is strong and rigid. Clear? If plasmolysis continues, death may result. If we placed the plasmolyzed plant cell in a hypertonic solution, pure water moves into the cell by osmosis and become turgid again. And this is the reverse phenomena of plasmolysis, which is known as deplasmolysis. Clear, students? Hopefully बेटे आप लोग को इस टॉपिक की समझ आई होगी. Thank you so much. Allah Hafiz.